My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, I welcome all of you as an individual and as a family to the presence of God today. मैं आज परमेश्वर की उपस्थिति में आपका व्यक्तिगत रूप से, एक पारिवारिक रूप से आपका स्वागत करती हूँ। The power of God's divine love is going to flow into your life today. परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम की सामर्थ आपके जीवन में आज बहने लगेगी। How we can receive that? और कैसे आप इसे पा सकते हैं? John 14:23, if you read, the Lord Jesus Christ says, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." यदि आप यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 23वें वचन को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरे वचनों का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। What a beautiful statement it is, isn't it? और ये कितना सुंदर वचन है ना? When we give importance to the word of God जब भी हम परमेश्वर के प्रेम को, उसके वचन को महत्व देते हैं and read it every day, और उसके वचन प्रतिदिन पढ़ते हैं, the Lord Jesus, along with his Father, Heavenly Father, the triune God will come and enter into our homes and enter into our lives. फिर ऐसे में परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर आते हैं, हमारे हृदय में, हमारे घर में निवास करना शुरू करते हैं। Whatever we do, he says, I am watching every one of your life, and whenever you seek me, I will be there to give you all the blessings you need. और वो हमारे जीवन को देखता है और वो कहता है कि यदि तुम मेरे खोजी बनोगे तो तुम्हारी जो भी जरूरतें होंगी, मैं होऊंगा तुम्हारे साथ उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। Especially when we give honor to his word, विशेष करके तब जब हम उसके वचनों का आदर सम्मान करते हैं। according to Isaiah chapter 66 verse 2, और यशायाह 66 उसके दूसरे वचन के हिसाब से, when we tremble at his word, जब हम उसके वचनों के प्रति थरथराते हैं, he will look at us तो वो हमें देखता है and come close to us, और हमारे निकट आता है, bless us in an abundant way. और बहुतायत के तरीके से वो हमें आशीष देता है। We are going to receive that blessing right now. और आप इसी समय ये आशीषें पाने वाले हैं। Let us hear a beautiful song. और आइए एक सुंदर सा गीत सुनेंगे। Each time I realize that nothing escapes his eyes, my problems come down to size. It's all in his hands, and though I might be alone, I know I'm not on my own. To stars down to the stones are all in his hands, is all in his hands. Control at his command. Each moment then unfolds below and above. Ever since time again, the power of love is all in his hands. It's easy to believe. I look around and see that part of him in me is part of the plan. Now I don't worry so. Each day the blessings flow. Now all I
बहन इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। Today we are going to meditate upon the word that is in Isaiah 41 and 13. Our Lord says, I am the Lord your God who takes hold of your right hand. He says, do not fear, I will help you. आज हम यशायाह अध्याय 41 और वचन 13 इस वचन पर मनन करने वाले हैं। यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं ही तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ जो तुम्हारा दाहिने हाथ थामे हुए तुम्हें लेकर चलता है। वो कहता है तुम भयभीत न हो, तुम बिल्कुल न डरो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। I will take hold of your right hand. मैं तुम्हारा दाहिना हाथ थाम कर। I am here to help you, dear children. मेरी प्यारी संतानों, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए हूँ। And in verse 14 he says, और वचन 14 में वो कहता है, never be afraid. तुम बिल्कुल कभी भयभीत न होना। In 2 Chronicles 20 verse 15 to 25. दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 15 से 25 तक हम इस तरह से देखते हैं। King Jehoshaphat was so afraid. राजा यहोशापात तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। When the vast army surrounded him, बहुत बड़ी सेना उससे घेरे हुए थी। he did not know what to do. वो नहीं जानता था कि अब क्या करें। He said, Lord, we are helpless. उसने कहा है प्रभु हम तो असहाय हैं। He gathered all the people of Judah, उसने यहूदा के सारे लोगों को इकट्ठा किया। the men, the wife, the children, even the little children. उसने स्त्री पुरुषों को, बच्चों को और यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चों को भी उसने इकट्ठा किया। They fasted and prayed. उन्होंने उपवास और प्रार्थना की। They went to the temple of God वो परमेश्वर के भवन में गए and they sought the help of God. और प्रभु से मदद मांगनी शुरू की। Dear friends, you have come here to seek the Lord. मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो यहाँ पर परमेश्वर की मदद ढूंढने के लिए आए हैं। You are not one or two, आप एक या दो लोग नहीं हैं, but we are many लेकिन हम लोग तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं। gathered here just like the people of Judah. बस यहूदा के लोगों के समान ही हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। Our Lord says, where 2 or 3 are gathered in my name, हमारा प्रभु कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, I will be there in their midst. मैं वहाँ उनके मध्य में रहता हूँ। Our God is here in our midst, मेरे dear प्यारे friend. दोस्तों, अभी हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में यहाँ पर है। As we have come here to seek the Lord, जैसे हम यहाँ पर प्रभु को खोजने के लिए इकट्ठे हुए हैं, as the prophet said, जैसे भविष्यवक्ता कहता है, be not afraid, Jehoshaphat. हे यहोशापात तू बिल्कुल न डरना। Do not be afraid of all the army. इन सारी सेनाओं से बिल्कुल न डरना। The battle is not yours, युद्ध तो तेरा नहीं है, but the battle is the Lord. लेकिन ये युद्ध तो प्रभु का है। Set yourself. तुम अपने आप को तैयार कर लो Keep people to sing, thank and praise God. और लोगों को परमेश्वर की स्तुति करने, धन्यवाद करने देना। But you stay still. और तू तो बस स्थिर खड़े रहना। The battle is the Lord. युद्ध परमेश्वर का है And you will see the salvation of the Lord tomorrow. और निश्चय ही कल तू परमेश्वर के उद्धार को देख पाएगा। And the same thing happened. और बिल्कुल वैसे ही हुआ। When the people went and saw the army, जब लोगों ने आगे जाकर सेना को देखा, they did not see the living people. उन्होंने वहाँ पर जिंदा लोगों को नहीं देखा। They saw the dead bodies on the ground. वहाँ पर उन्होंने केवल अपने दुश्मनों की मरी हुई देह और लोथ ही The देखी। mighty God fought the battle for them. सर्व सामर्थी परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध लड़ा They destroyed themselves और उन्होंने खुद को ही नाश कर दिया। and they died. शत्रु खुद को नाश करके मर गए। Dear friends, they were rejoicing over the battle of the Lord. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर जो युद्ध लड़ा उसके लिए इजरायली लोग सच में बड़ी खुशी से भर गए। Even today you will be jumping up and down as the Lord will be doing your battle.
और जैसे आज परमेश्वर आपके लिए आपका युद्ध लड़ता है, निश्चय आप बड़ी खुशी के मारे कूद पड़ेंगे। People might have done so many tricks on you. शायद लोगों ने आपके विरुद्ध में बहुत सी युक्तियां की हैं। Do not be afraid. आप बिल्कुल न डरें, Do not be afraid. बिल्कुल भयभीत ना हो। Nothing can touch you. आपको कुछ भी नहीं छू सकता है। Today you will see the salvation of the Lord. आज निश्चय आप परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। Be still and know that He is God. स्थिर खड़े रहो और जान लो कि वो परमेश्वर है। Our Lord is so zealous for us. हमारा परमेश्वर हमारे लिए इतनी ज्यादा जिज्ञासा रखता है। The battle is not ours. युद्ध तो हमारा नहीं है, It is His. ये युद्ध तो उसका है। He will repay it. वो इससे लड़ेगा And we will be saying, the Lord is on my side. और हम तो बस यही कहेंगे कि परमेश्वर मेरी ओर से है। I need not be afraid of any man. मुझे किसी भी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं। I will not be shaken. मैं बिल्कुल हिलाया नहीं जाऊंगा। I have kept the Lord before me all the time. मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने सामने रखा है। I will never be shaken. मैं कभी हिलाया नहीं जाऊंगा। So the Lord says to you today, इसलिए आज परमेश्वर आपसे कहता है, do not be afraid. बिल्कुल भयभीत ना होना। I will take hold of your right hand. मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हें थाम लूंगा And I myself will help you. और मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। Dear friends, one dear pastor called Pastor Timothy, he also was in the same situation. पास्टर तिमोथी वो भी बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति में थे। Can we listen to his testimony right now? आइए उनकी गवाही हम सुनते हैं। And his wife, Sister Glory. और उनकी पत्नी सिस्टर ग्लोरी। Shall we listen to him what the Lord has done? आइए हम सुनते हैं कि प्रभु ने उनके लिए क्या काम किया है। मैं पास्टर टिमोथी हूँ। मैं मुल्कनूर क्षेत्र में सेवकाई कर रहा हूँ। 2002 में सेवकाई के दरमियान में ही मेरा विवाह हुआ था, लेकिन सन 2012 तक कोई संतान नहीं थी। इसके कारण से जो हमारे अन्य मित्र थे, सहकर्मी थे और संबंधी थे, वे ये कह रहे थे कि ये लोग तो बिना संतान के ऐसे ही सेवा करते हुए ही खत्म हो जाएंगे। वे मजाक करते थे कि हम क्यों इस तरह से सेवकाई में हैं। इन बातों को सुनकर हम बड़े ही निराश थे। कईयों ने मेरी निंदा की। ऐसी निंदा की बातों को सुनकर मेरी पत्नी जो थी हताश हो गई और उसने कहा कि ये अच्छा है कि मैं मर जाऊं और मैं क्यों करके सेवकाई करूं। उस समय मैं ये सोच रहा था कि अगर पत्नी मर गई तो मेरी सेवकाई का क्या होगा। मैं सोचने लगा कि मेरी सेवकाई का क्या होगा। मैंने सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दिया और एक टूटे हृदय के साथ मैंने एक पत्र भाई पॉल दिनाकरण और बहन इवेंजलिन पॉल को लिखा। उसके बाद डॉक्टर पॉल दिनाकरण परिवार ने हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की और हमें एक पत्र लिखा कि हम चिंता न करें, परमेश्वर निश्चय हमें एक संतान देगा। और यही आशा और विश्वास रखते हुए दिसंबर सन 2011 में हमने परिवार आशीष योजना में परिवार के रूप में ईश्वर की आशीष के लिए सहभागिता की और सहभागी बनते ही उसी माह मेरी पत्नी ने गर्भधारण किया और परमेश्वर ने हमें एक खूबसूरत बेटी का आशीर्वाद दिया जिसका नाम शारोन है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। See this little Sharon. इस छोटे शैरन को देखिए। Today our Sharon is celebrating her birthday. आज हमारी बेटी शैरन जन्मदिन मना रही है। Come Sharon, come. यहाँ पर आओ शैरन। God has given this little Sharon as a gift to our dear brother and sister. हमारे प्रिय भाइयों और बहनों को परमेश्वर ने छोटी सी शैरन मानो एक उपहार, एक भेंट के रूप में दी है। What a lovely girl the Lord has given them. परमेश्वर ने इन्हें बहुत ही सुंदर बच्ची दी है। One day she will also sing like Sharon. एक दिन ये भी शैरन के जैसे जरूर गाएगी। She will also give message like Sharon. शैरन के जैसे ये भी संदेश देगी। The Lord has honored this family. परमेश्वर ने इस परिवार का आदर किया है। Today they are rejoicing over Sharon. आज ये शैरन के लिए सच में बड़े आनंद से भरे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। Let us give a good hand clap to God. आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं।
Now I am going to pray for those who are not having children for long years. अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनको कई साल से कोई बच्चे नहीं हुए। Our loving Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, Lord, you have said, I myself will come and help you. प्रभु तूने स्वयं कहा है कि मैं खुद आकर तुम्हारी मदद करूंगा। Help your children, Lord. अपनी संतानों की अभी मदद कर प्रभु। Let your right hand come upon the womb of those who do not have children right now. प्रभु जिन लोगों की कोई संतान नहीं है उन लोगों की कोख पर तेरा दाहिना हाथ अभी आने पाए। Wherever they are, ये लोग चाहे जहां भी हो, Lord, let your nail-pierced hand come upon them, Lord. प्रभु तेरे किलों से छीदा हुआ हाथ अभी इन लोगों पर आ जाए। Touch my dear sisters. मेरी प्यारी बहनों को तो स्पर्श कर प्रभु। Touch the husbands. इनके पतियों को स्पर्श कर। Heal them, Lord. इन्हें चंगाई दे प्रभु। And let the same empty womb carry a blessed child right और now. प्रभु ये खाली कोख तेरी धन्य संतान को जन्म देने वाली हो जाए। A beautiful child full of your presence, Lord. प्रभु सुंदर बच्चे दे जो तेरी उपस्थिति से भरे हुए। Lord, bless them today. हे प्रभु आज तू इन्हें आशीष दे। Let them be conceived right now. प्रभु इन लोगों को तू आशीष दे, ये अभी संतान को जन्म देने वाले हो। By the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा let them have a प्रभु child. ये निसंतान लोगों को संतान हो। And let them rejoice over your blessing. और प्रभु ये तेरी आशीष पर आनंद मनाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. Thank you. God bless you. आमीन। धन्यवाद। Dear friends, प्यारे दोस्तों, what a wonderful God we have. हमारा परमेश्वर सच में कितना अद्भुत है। Exactly after they prayed, प्रार्थना के बाद our dear sister Glory, she conceived just the next month. और जैसे प्रार्थना उन्होंने की तो बस हमारी प्यारी बहन अगले ही महीने उन्होंने गर्भ धारण किया। And in 2012 September, the Lord gave them a beautiful girl child. 2012 सितंबर में परमेश्वर ने इन्हें बहुत ही सुंदर बेटी देकर आशीष दी है। The Lord has touched you already. प्रभु ने आपको पहले स्पर्श किया है And believe that and say that I am having a child today. और निश्चय ही ये विश्वास करके ये कह सकती हैं कि हाँ, आज मेरे पास संतान है, प्रभु ने मुझे बच्चे दिए हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Whatever you do not have, आपके पास जो भी नहीं है the Lord will grant you today. परमेश्वर आज ही वो आपको देगा। You will see the deliverance of the Lord. आज ही आप परमेश्वर के छुटकारे को देख पाएंगे। And thirdly, और तीसरी बात, the Lord will help us from the fear of the demons. प्रभु निश्चय ही दुष्ट आत्माओं के डर से हमारी मदद करेगा, हमें उससे छुड़ाएगा। In Isaiah 59 and 19, यशायाह 59 वचन 19 में हम पढ़ते हैं। the Bible says, when the enemy comes in like a flood, बाइबल कहती है कि जब दुश्मन बाढ़ के समान आता है, the Spirit of the Lord lifts a standard against him. परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करता The है। Spirit of the Lord fights for us. परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए लड़ता है। Not by might, not by power, but by the power of the Holy Spirit. न तो शक्ति से न बल से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये होता है। Where the Spirit of the Lord is, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, there is deliverance. वहाँ पर आजादी है। Today, let us also cry out to the Lord, आइए आज हम परमेश्वर को पुकार उठे, asking for God's help. परमेश्वर से हम मदद मांगे। Shall we all stand up wherever we are? आइए हम जहाँ भी हैं उस जगह पर खड़े हो जाए। Shall we all cry out to God? आइए सब हम परमेश्वर को पुकार उठे, Wherever you are, चाहे आप जहाँ भी हैं। will you please stand up and cry out to God? क्या आप कृपया खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे? The Lord's right hand will come upon you. परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके ऊपर आएगा। His righteous right hand will come upon you. उसका धर्म में दाहिना हाथ आप पर आएगा। He is a God of peace. वही तो शांति का The परमेश्वर Lord है। will give you peace today. आज परमेश्वर आपको शांति देगा। He is the God of joy. वो आनंद का परमेश्वर है।
The Lord will mend your broken hearts today. परमेश्वर आज आपके टूटे हुए दिल को जोड़ेगा। It's enough you have been afflicted. अब तक इतने क्लेश में आप पड़े हैं, ये काफी हो चुका Tell है। this to God. इससे आप परमेश्वर से कहे, Lord, I must see the deliverance of God today, Lord. हे प्रभु, आज मैं परमेश्वर के छुटकारे को देखने वाला बनूं, Not tomorrow. कल नहीं। Today is the deliverance. आज का ही दिन छुटकारे का हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Shall we all praise God? आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Give them a job, those who do not have a जिन job. लोगों के पास नौकरी नहीं है, इन्हें तू नौकरी दे प्रभु। Lord, settle them beautifully in life with a life partner. प्रभु, जीवन में इनको अच्छा जीवन साथी देकर स्थापित कर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for the deliverance, Lord, इनके छुटकारे के लिए धन्यवाद प्रभु। from all their diseases. इनके हर एक रोगों से तू इन्हें छुटकारा दे। Do you believe that the Lord has touched you today? क्या आप विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है? Say thank you, Jesus. कहें धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The Lord has helped us. परमेश्वर ने हमारी मदद की है। The Ebenezer has helped उस us. एबेनेज़र ने हमारी मदद की है। He is coming with you, dear friends, प्यारे दोस्तों, वो आपके संग संग चलता है and you will prosper. और निश्चय ही आप संपन्न होंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।